6 points were important. Number 1, power centers. Number 2, ये मार्कर नहीं सही चल रहा, कोई और मार्कर है? एनी फ्रेश मार्कर? ये नहीं सही चल रहा। मल्टीपोलैरिटी, then third was alliances and coalition. Diplomacy and conflict. Number 5, shifts in power. Soft power. How states interacts with each other. It means how you are going to distribute your power. In this topic we are going to study this. Right now, and they are based on 6 components. You can say that power centers, the balance of power can shift over time as different countries or groups of countries gain or lose influence. You people have also observed that with the passage of time, those countries who were powerful in the past, now they are not in the power, right? And those who were weak, they have grown up and now they have become the powerful states. For example, if we take the example of our Pakistan, India and Bangladesh. Yes. हाँ ठीक है. If we only see, अगर हम और countries में ना भी जाएं, if we only see 3 countries, Pakistan, Bangladesh and India as well. You know, in 1947 and 1971, these 3 countries were not enough powerful, but now you have seen that with the passage of time, the improvements and the nature of power has changed. So it changes with the passage of time. And further, major power centers historically included the United States, Russia, China and the European Union among others. So the powerful states of the past were United States, Russia, China and the European Union. Now in the multipolarity and bipolarity and unipolarity, do you know all the meanings of multi, bi and uni? Do you know it? आपको नहीं पता? Okay. By multipolarity means there are many powerful states. Unipolarity means only one power, and bipolarity means 2 powers, right? So in the history we have observed that first there was multipolarity, then there were bipolarity, then there were unipolarity, and now in the recent years we will see the multipolarity system. कि आज हमारे पास एक ताकतवर नेशन नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं. ये अगर हम 19th सेंचुरी से आप अपना देखें तो आप अपना पैराडाइम शिफ्ट जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल कम टू नो के हाउ द पावर चेंजेस. So the international system can be categorized by different structures. Multipolarity refers to a system with several major powers, and bipolarity involves 2 dominant powers, and unipolarity is when one state or actor holds significant influence, right? So these structures, it basically affects the IR. Yes. क्या चीज? बाइपोलैरिटी मीन्स उस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ताकतवर ममालिक थे. हाँ, तो उसलिए उस वक्त टर्म यूज की जाती थी बाइपोलैरिटी.
यूनिपोलैरिटी पे आई जब एक दफ़ा सिर्फ आपकी यूनाइटेड स्टेट्स जो थी वो पावरफुल थी, ठीक है। और मल्टीपोलैरिटी हिस्ट्री में भी आई है और अभी फिर आ गई है। आपकी वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हो रहा था? मल्टीपोलैरिटी थी ना, बहुत सारी स्टेट्स आगे थी, जर्मनी थी आपकी, फ्रांस था, इंग्लैंड था आपका, अमेरिका था, और बहुत सारे। अगर एशियन कंट्रीज में से कौन था इतना खास? जापान था, ठीक है। तो अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो यू विल सी द इफेक्ट्स ऑफ these three systems over there. Now in alliances and coalition means that states often form alliances or coalitions to counterbalance the power of others, ठीक है। अपनी आप लोग अलाइंसेस बनाते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ इत्तेहादी बनते हैं, डिफरेंट कोalitions बनाते हैं, डिफरेंट आपके जो रीजनल वो चल रही तो उनके आप मेंबर्स बनते हैं, इसलिए कि आप फिर किसी की दूसरी भी स्टेट की को काउंटर बैलेंस कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NATO is a military alliance of Western countries created during the Cold War, ठीक है, to counter the influence of the Soviet Union, ठीक है। कि अब सोवियत यूनियन उस वक्त अगर बहुत ज़्यादा था तो आपने उसके लिए एक नेटो अलायंस बनाया गया है जिसने उन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे कि भाई ज़्यादा तो नहीं एक्सेस हो रहा पावर का या कुछ इस तरह करके, तो कर भी जाते। जैसे आप देख लें कि जब ईरान न्यूक्लियर डील हो रही थी तो उस टाइम भी तो वर्ल्ड ने कहा था ना कि वो अपनी चीज़ें थोड़ी सी कम करें जितने भी न्यूक्लियर उसमें इशू में था। तो उसका मकसद यही होता है कि भाई किसी के पास इतना ज़्यादा एक्सेस में ना हो जाए कि वो बाकी स्टेट्स को ओवरकम कर लें। तो हर किसी पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है, आपने नहीं तो हर कोई तो हर कंट्री यही कहे कि भी ठीक है इट इज़ माय पावर एंड इट्स अप टू मी कि हम उसको कितना ले सकते हैं कितना नहीं, लेकिन फिर भी आपने एक थोड़ा सा हिसाब किताब हर जगह पे रखना होता है। नहीं, वो सवाल ये था कि जो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है क्या हम खुद पहले इस्तेमाल करेंगे या कोई हम पे करेगा? तो डेफिनेटली कोई भी स्टेट खुद से स्टार्ट नहीं करेगी वो हाँ नहीं ना, वो फौरन ही तो नहीं ना पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। देखें जब भी किसी मुल्क पे अटैक होता है तो 100% थोड़ी इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अगर ये इजराइल और हमास वाला भी देखें तो हमास ने ये तो नहीं किया था ना कि पूरा का पूरा एकदम इजराइल ख़त्म कर दिया था, चलो कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहा कि अगला भी आपको पूरा देनी, तो वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते तो पूरे का पूरा वो ख़त्म हो जाता। ऐसा नहीं किया जाता ना, एक इंटरनेशनल लॉ है कि किसी भी जगह पे आप वॉर करेंगे तो उसके लिए कुछ सर्टेन चीज़ें हैं और उसमें तो बल्कि ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। आप कहते हैं कि आप सिविलियन जो आपकी आबादियां हैं उस पर आप अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मसला यही होता है कि होता ही उसी पे कर रहे होते हैं, तो ये वायलेशन ही तो हो रही होती, लॉ की वायलेशन हो रही होती है बेसिकली। आपने अगर किसी को थ्रेट भी करना है तो आप किसी ऐसे एरिया में आप थ्रेट करें कि जहाँ पे आबादी कम हो या जहाँ पे आप उनके किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाएं, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट बिल्कुल। तो अब जब वो सिविलियन उस पर करेंगे तो वो फिर सारे वायलेशंस तो हो रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट। यस, सो मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर कैन हेल्प prevent conflicts as it discourages any single actor from becoming too dominant. Diplomacy and negotiation play a crucial role in managing power rivalries. If your diplomatic relations are up to the mark, you will get benefits of it. So if your diplomatic leaders, they are unable to represent the government's policies, obviously the result will be in the failure. Next is shifts in power. The balance of power is not static, it can change due to economic, military, technological और political developments. So सिर्फ आपकी फौज
नहीं है कि ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही चीज़ एस्पेक्ट पावरफुल होना चाहिए, आपको हर लिहाज से अपने हर एस्पेक्ट्स को पावरफुल रखना चाहिए, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक हो गया, मिलिट्री है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं. ओके, सो द राइज ऑफ चाइना एंड द रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स is an example of significant shifts in recent years. These years we have seen the emerging power of Chinese. And little bit, although till yet United States it's not completely declined, but to some extent it has lowered down. यही तो exactly जी. Now in soft power, by soft power means that in addition to military power and economic power, soft power which includes cultural, educational and diplomatic influences also play a role in IR. So your culture, your education and your diplomatic relations affects your country's power. कल्चर में कैसे होता है कि आपके कल्चर को कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका मीडिया कितना % देखा जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ में. जैसे हम सारी उम्र इंडिया के शौकीन रहे हैं मूवीज़ के और वो सब फेवरेट होती थी ना, हाँ, इतना हम लोग इन्फ्लुएंस थे तो इवन वी हैव अडॉप्टेड सो मैनी थिंग्स इन आवर कल्चर एज वेल. तो यही हो रहा है कि कल्चर हो रहा है. फिर एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं कि कितने कौन से ममालिक आपके स्टूडेंट्स को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो वो भी हो रहा है. तो ऑब्वियसली जब वो बाहर के कल्चर में जाते हैं तो वहाँ के उस कल्चर को भी वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं. इफ़ नॉट 100% बट टू सम एक्सटेंट उनकी पर्सनालिटी में वो आ जाता है. और समटाइम्स वी गेट द पॉजिटिव इफेक्ट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, if students are studying in any university, so they find good culture over there as well and the good policies कि वहाँ पे लोग ऐसे सिस्टम काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे थे. जैसे ये आपके बिजनेस में भी बड़े चेंजेस आते हैं. ये पहले आपके पास ये सुपर स्टोर्स और ये वाले जो कॉन्सेप्ट था ये नहीं था. लोग बाहर गए, उन्होंने देखा है कि एक ही मॉल के अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है, like this इम्तियाज़ एंड बिन हाशिम एंड बिन सफ़ीर एंड ऑल दैट. ये आइडियाज़ कहीं से तो जनरेट हुए हैं ना, पाकिस्तान में तो ये नहीं थे आइडियाज़. तो बाहर लोग गए हैं तो वहाँ का कल्चर आके जो बिजनेसमैन वो ये सोचते हैं कि अगर ये कितना कंफर्ट है कि हर छोटे छोटे पोर्शन में हर चीज़ मिल जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोकल आपकी शॉप्स हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं और ये वाले इन पे ज़्यादा स्टोर्स पे आपका बिजनेस ज़्यादा हो रहा होता है. ठीक है, अच्छा जी. फिर मैंने थोड़ा सा कुछ क्लास में ना लिखवाया था कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पावर का, तो मैं उसको पढ़ देती हूँ तो आपके माइंड में थोड़ा सा आ जाएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पावर हैज़ अ लॉन्ग एंड कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री. एट द कोर ऑफ नियरली ऑल द वेरियस मीनिंग्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर is the idea that national security is enhanced when military capabilities are distributed so that no one state is strong enough to dominate all others. ठीक है, आपकी मिलिट्री को भी काउंटर बैलेंस किया जाता है ताकि कोई दूसरी आके इसको ओवरकम ना कर लें. ठीक है, सो द बैलेंस ऑफ पावर इन IR is a dynamic concept that aims to prevent the dominance of any single nation, maintaining इक्विलिब्रियम अमंग कंपीटिंग स्टेट्स. तो आपको क्या होता है यहाँ पे डोमिनेंस, जो आपने किसी भी बेसिकली कंट्री की डोमिनेंस को ख़त्म करना होता है. ठीक है, हिस्टोरिकली एग्जाम्पल्स सच एज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखवाई थी. कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप इन द 19th century एंड द बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द कोल्ड वॉर illustrates the efforts to sustain a strategic बैलेंस. 2 इवेंट्स आपके हुए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप इन 19th century एंड दूसरा क्या था आपका बाइपोलर स्ट्रक्चर. जो बाइपोलर स्ट्रक्चर हुआ था जिसमें आपकी रशिया या सोवियत यूनियन या और आपका अमेरिका जो थे वो बाइपोलर सिस्टम में आ गए थे कि ये 2 ताकतवर ममालिक थे और बाकी सब इनकी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे होते थे.
In the contemporary world, the power dynamics between the US and China define global geopolitics, encompassing economic competition and military capabilities. Similarly, regional struggles such as NATO, Russia, tensions and power dynamics in the Middle East. ये आज के दौर का, बाकी हिस्ट्री तो आपको मिल जानी थी, बुक्स पे भी मिल जाती, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो कंटेम्प्रेरी इस वक्त जो पावर डायनेमिक्स और जो शिफ्ट्स हो रही हैं ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. और जब भी आप अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे और कोई इस तरह का होगा तो आपको हिस्ट्री और प्रेजेंट का, मैं बारहा हर क्लास में कह रही हूँ कि आपने हिस्ट्री को और जो करंट सिनेरियो हो उसको जहन में रख के फिर आपने पढ़ना है. अगर आप थ्योरीज ऑफ आईआर के लिए एग्ज़ाम के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि जो 200 साल पहले उस थ्योरी में जो बात कह दी गई थी आप उसी को करें, आपने उसको करंट सिनेरियो में भी एनालाइज करना है कि इस वक्त अगर ये थ्योरी फॉलो कहीं हो रही है तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो तब आपका आंसर ऐसा इफेक्टिव होगा कि वो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा. ठीक है. ऑल राइट, NATO वाला भी हो गया. Beyond traditional realms, the economic balance of power sees the rise of Asian economies challenging established power, while technological dimensions like cyber warfare and the space race reshape the global landscape. आज के आपके कौन से 2-3 इश्यूज हैं? एक आपका साइबर स्पेस जा रहा है, एक आपका स्पेस रेस जा रहा है. ठीक है, लोग चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं खला में, और वो सारा बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं. ठीक है. So reshape the global landscape. Challenges to the balance of power include the influence of non-state actors. आज जो आपके बैलेंस ऑफ पावर को जो एक्टर चेंज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस, उसमें आपका नॉन स्टेट एक्टर्स हैं एंड शेयर्ड ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज. ठीक है, आज आपका क्लाइमेट चेंज एक इशू बना हुआ है इस वक्त, बल्कि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज का पे कुछ कंट्रोल नहीं किया गया तो वी आर गोइंग टू हैव द ड्रास्टिक रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, उसमें आपकी फूड इनसिक्योरिटीज़ होगी, आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो गई हैं, आपका जो है वो वाटर इशू बन जाएगा. बिल्कुल ऐसी है. तो उसमें फिर आपने अपने इकोनॉमिकल चैलेंजेस आपके पास आ जाएंगे. ज़ाहिर है अगर आपके देखें ना, अगर हम कहीं और की एग्जांपल ना लें तो जो 2022 का पाकिस्तान में फ्लड आया था तो उससे क्या हुआ, जो हमारी इंटरनल क्रॉप्स थी पूरी की पूरी तबाह हो गई थी. ना सिर्फ फसल तबाह हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि लोगों के पूरे पूरे घर जो थे वो ज़ेर आब आ गए थे. और अगर ऐसा होता है कि जहाँ कहीं जिस एरिया में अगर कहीं पानी बहुत आ जाता है तो फिर वो एरिया दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, ना वहाँ पे कोई प्रॉपर घर बन सकता है और ना ही वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर वो सारा इसमें होता है. जैसे पिछले दिनों में अभी ये कुछ 2-3 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि दरियाए चनाब की शायद बात हो रही थी कि वो उन्होंने कोई टर्न, दरिया ने कोई टर्न लिया है, तो वो कोई जो था पंजाब के कोई एरियाज जो थे वो उसके उस जद में, वो उस पानी के जद में आ गए थे. तो फिर उस पर एनालिसिस किया जा रहा था कि अब जो इस तरह का दरिया का पानी किसी एरिया में आ जाता है तो फिर बाद में अगर वो ज़मीन ड्राई हो भी जाए तो तब भी वो यूज़लेस हो जाती हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर दरियाओं के किनारे नहीं रहें तो ये जो आपका एग्रीकल्चर और जो आपका ट्रेड है ये भी नहीं चल सकता. फिर आपका सी फूड जो है वो भी मुश्किल है. वो तो ठीक है, अब जैसे लास्ट टाइम होता सवाल में जैसे वो पूरे बाजार एग्जैक्टली हाँ वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ फासले पे हो. जैसे लास्ट टाइम तो वो जो पूरे जो रेस्टोरेंट्स थे वो ही बहते हुए साथ चले गए थे. वो खूबसूरती तो थी किसी वक्त पे, लेकिन वो ज़रा सा पानी का टर्न हुआ तो वो सारी चीज़ें, तो वो भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अगर आपने कोई चीज़ बनानी भी है तो थोड़ा सा फासले पे, कि अगर कुछ ऐसा हो तो एटलीस्ट आपको कोई स्केप चांस आपका पॉसिबल हो सके, लेकिन वो ऐसा सच नहीं हो रहा था. ऑल राइट,
क्लाइमेट चेंज के बाद है लुकिंग अहेड ट्रेंड्स point towards a shift to multipolarity and the evolving role of international organization in shaping global power dynamics. अब आपकी जब multipolarity फिर आ गया है तो फिर आपका emerging role of international organization it has become very important. All right. So the balance of power remains a complex and evolving force that defines the intricate web of relationship among nations in the 21st century. अब बात आ जाती है इकोनॉमिक बैलेंस की. अब इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट where the rise of Asian economies, particularly China, challenges the economic dominance traditionally held by Western nations. अब आपकी एशियन कंट्रीज़ में इस वक्त चाइना जो है वो एक हब बिजनेस हब बनता जा रहा है तो इट हैज़ बिकम अ थ्रेट फॉर अदर नेशंस एज वेल कि ये ना हो कि चाइनीज़ ओवरकम करने चीज़ों को. So trade alliances and economic cooperation play pivotal roles in shaping influence on the global stage, emphasizing the interconnectedness of economic and geopolitical factors. ठीक है, तो आपके if your economy is getting stronger and stronger, it will shift your power dynamics as well. Additionally, the role of global financial institutions like the IMF and the World Bank reflects the ongoing negotiations for more balanced representation and decision-making power among emerging and established economies. अब आपका IMF और वर्ल्ड बैंक जो आपको फाइनेंशियली फैसिलिटेट कर रहा है ये भी तो एक इमर्जिंग चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इसका बढ़ता जा रहा है. इवन हम तो अभी तक मुसीबत में ही पड़े हुए हैं. ऐसे ही है ना, IMF के हम डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उसको अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टैक्सेस की प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो रही है कि जो हम वहाँ पे वापस कर सकें. So regional dynamics जो था, regional dynamics further highlights the intricate nature of the balance of power in the Indo-Pacific region. Naval capabilities and geopolitical alignments contribute to a complex interplay of influences, particularly with India's ascent impacting regional power dynamics. अब आपकी जो सारी जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं, इट मैटर्स अ लॉट. आपकी अगर वो नहीं होंगी तो आप कैसे फिर अपने प्रोटेक्शन को, अपनी पावर को स्टेबल रखेंगे या कैसे अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं. जी ऐसे ही है. सो इन द मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया एंड ईरान engage in a regional power struggle with proxy conflicts and political maneuvering shaping the balance of influences. अब जो प्रॉक्सी वॉर्स भी होती हैं वो भी हमने देखा है कि आज के मौजूदा दौर में उसका एक बहुत किरदार जा रहा है. तो ये सब आपने इसमें बताना है. अच्छा, द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन इंट्रोड्यूसेस, ये थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आप इस तरह करिएगा नूरुलैन, ये जो अभी कंप्लीट करके फिर सबके साथ ना इसकी सॉफ्ट कॉपी पिक्चर्स खींच के भेज दीजिएगा ताकि सबके पास आ जाए कॉपी में. अच्छा जी, ये लिख लीजिए. द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, थोड़ा सा ये कंप्लीट हो जाएगा ये. द टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन introduces new challenges and opportunities full stop. Cyber warfare with its potential to disrupt. अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ. The technological dimension introduces new challenges and opportunities. Full stop. Cyber warfare
comma, with its potential to disrupt, with its potential to disrupt and influence. भाई कोई एक आध पंखा तो चला दें, बहुत ही घुटन हो रही है। वो पीछे वाले थोड़े से प्लीज ऑन कर दीजिए। Potential to disrupt and influence has become a significant factor, has become, आवाज तो मेरी सही आ रही है ना? Has become a significant factor in the power equation. In the power equation, full stop. Moreover, the emerging space race, has elevated जी emerging space race has elevated, elevated, space race has elevated space as a domain, elevated space as a domain for strategic competition, emphasizing the importance of domain for strategic competition, comma, emphasizing the importance of technological capabilities beyond Earth. Full stop. अच्छा जी, इस पॉइंट में क्या है कि वो कह रहे हैं कि when it has introduces the new challenges and opportunities, so cyber warfare with its potential to disrupt the influence has become a significant factor. आज जो हमारा साइबर वॉरफेयर है, it has become an alarming issue for all of us, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी के इसलिए बहुत वो चल रहे हैं। डाटा सिक्योरिटी नहीं है आपकी, और आपके जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे एक्सेस लोगों का हो रहा है, वेबसाइट्स हैक्स हो रही हैं, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, वो चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो ये चीज़ अभी तक हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या ये समझ लें कि अभी तक पाकिस्तान में हम इसके लिए कोई ख़ास स्ट्रेटजी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। बहुत ये हमारा वीक एरिया है बेसिकली। पाकिस्तान ने एक दफ़ा कोशिश की थी जो फेल हो गया था। कौन से सन में की थी तकरीबन? हाँ नहीं, 70s में हुई थी आई थिंक, जब एक एफर्ट हुई थी तो वो नहीं फ्लॉप हो गया था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो आज हम भी थोड़े से बैलेंस हैं। अच्छा जी, चले आगे लिखिए। चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल बैलेंस ऑफ पावर, challenges to the traditional balance of power include
include the increasing influence of include the increasing influence of non-state actors such as multinational corporations and non-governmental organization, जिसको short NGO भी लिख लें आप, non-governmental organizations challenges the centrality of nation states in global affairs. Full stop.